Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of English which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2011 to 2022. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. कॉमनसुरेट. कॉमनसुरेट का स्पेलिंग कौन सा ठीक है? टू इज द आंसर. फोस्टरिंग का सिनोनिम क्या होगा? फोस्टरिंग क्या होता है? नर्चरिंग. 4 इज द आंसर. पालन पोषण करना. नेक्स्ट 143. वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगैनिस्ट. 3 इज द आंसर. हु इज मिसोगैनिस्ट? हु हेट्स मैरिज. एस्केटिक कौन होता है? सन्यासी. फिलैंथ्रोपिस्ट. परोपकारी. हु हेल्प्स पुअर. Next 144. One word substitution. Person who renounce the world and practice self-discipline in order to attain salvation. अभी देखो बताया ना, सन्यासी. 2 is the answer. Next 145. Sentence correction. The Moscow State Orchestra had been performing in Cheltenham for the next 3 weeks. देखिए had लिख दिया, had been performing और लिखा है for the next 3 weeks. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? Will be performing. तो 3 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146. एंटोनिम ऑफ अरेनमेंट. अरेनमेंट का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज अरेनमेंट? अक्यूज करना. तो उसका दूसरा क्या होगा? एक्सोनरेट करना. तो 2 इज द आंसर. प्रोकैरिस्टिनेशन. देखिए गुजरात जुडिशरी से पूछा गया 2019 के पेपर से. आप देख लीजिएगा इसको, वहां पर है ये. क्या होता है? एक्शन ऑफ डिलेइंग. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148. मोडस ऑपरेंडी मीन्स. रिपीट क्वेश्चन है, एमपी से ही पूछा जा चुका है बहुत बारी. Mode of behaving, way of counseling, manner of working. 3 is the answer. 149. One who walks in sleep is somnambulist. 3 is the answer. 150. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom a moot point, a debatable point. So 4 is the answer. Next 141. Out of the given alternatives, choose the one which can be substituted for a sentence, a song embodying religious and sacred emotions. That is hymn. 3 is the answer. Next 142. A past master is a person who knows everything in the past. या फिर was perfect in the past but knows nothing now. जैसे shallow knowledge या फिर is thorough in chosen field. 4 is the answer. Next 143. Select the option that is the nearest meaning into the bold word. The portal will help victims and complainants to anonymously report cybercrime. मतलब इनकॉग्निटो, मतलब छुपे हुए तरीके से. अनोनिमसली क्या होता है? जिसमें कोई डिटेल्स रिवील नहीं होती. इनकॉग्निटो का मतलब भी क्या होता है? जो कि छुपा हुआ हो. तो 1 is the answer. Next 144. Choose the exact meaning of the idioms. Mrs. Hashmi has been in the blues for the last several weeks. In the blues का मतलब क्या हुआ? अब्रोड चले गए, अनवेल है, डिप्रेस्ड है, पेनीलेस हो गए. डिप्रेस्ड हैं. 3 is the answer. Next 145. Give one word substitution. One who pretends to be someone else called imposter. Obviously 2 is the answer. नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट क्या होता है? देखिए, narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have unreasonably high sense of their own importance. मतलब सोचते हैं कि मुझसे तो बड़ा कोई भी नहीं है. तो बोलते हैं नार्सिज्म. एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल. स्टोइक का मतलब क्या होता है? सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग. और स्टोइक पर्सन क्या होता है? बीइंग स्टोइक इज बीइंग काम ऑलमोस्ट विदाउट एनी इमोशन, इमोशनलेस. 2 इसका आंसर रहेगा. Next 146. Impasses means a deadlock. 3 is the answer. Next 147. Change this sentence from direct to indirect. I said to him, why are you working so hard? तो इसमें क्या आएगा? I asked him why he was working so hard. तो 1 इसका आंसर हो गया.
Next 148. Choose the one word that can substitute for the given sentence. That which cannot be corrected. Incorrigible. इसको करेक्ट नहीं कर सकते. 4 is the answer. अनइनटेंजिबल लिखा हुआ है. अब देखिए, एक होता है वो टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, एक होता है इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते. अब लिखा अनइनटेंजिबल मतलब टेंजिबल ही हो गया वो. रीजेबल क्या होता है? डिफिकल्ट टू रीड, जिसको मतलब पढ़ ही नहीं सकते, इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा. इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट. कुछ ऐसा धब्बा लग गया कि उसको मिटा नहीं सकते. 4 इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 149. फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड डिमिनिश. डिमिनिश क्या होता है? जो कि डिक्रीज हो जाए, जिसकी वैल्यू कम हो जाए, है ना. तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 150. चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेजेस बर्ड्स आई व्यू. बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव. 2 इज द आंसर. Question number 141. One who walks in sleep is somnambulist. 3 is the answer. Next 142. Identify a sentence which is not written in passive voice. Utmost care has to be taken. B आगे तो है. Being student you must work hard. He was being chased. The case has been set aside by the court. तो be, by, was एंड थर्ड फॉर्म ये सब क्या है? ये पैसिव होते हैं. तो जो नहीं है वो दैट इज 2. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 143. वन हु लुक्स ऑन विदाउट पार्टिसिपेटिंग मीन्स स्नूजिंग. नो. ऑन लुकर. 4 is the answer. Next 144. Synonym of lethal is dangerous, deadly. 2 is the answer. Next 145. Choose the correctly spelt word. तो कोरिजेंडम होता है, कोरिजेंडम होता है. तो CORRIGENDUM. This is correct spelling. 1 is the answer. Next 146. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom and phrase. Spick and span. इसका मतलब क्या होता है? To have double policy, no. Safe, unsafe, unattended, no. Neat and clean. 3 is the answer. Next 147. Give the synonym of the word abstruse. क्या होता है? Hidden. 2 is the answer. Next 148. Reckless is to rash. What anomalous is to deviant. 2 is the answer. Next 149. The jury was able to see through the dash argument of the defense lawyers. कौन से argument? Stoic या फिर cynic या फिर spacious? Spacious arguments. 3 is the answer. Next 150. The term used for killing one's brother is, it is fratricide. 2 is the answer. Next is 141. Choose the correct passive voice of the given sentence. The child broke the mirror. The mirror is broken by child. The mirror was broken by child. Was broken. 2 is the answer. Next 142. Reprobate means a person without moral scruples. अब स्क्रपल क्या होता है? ये एक थिंकिंग होती है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं वो मोरली ठीक है या नहीं है, वो आपके पास थिंकिंग है या नहीं है, तो वो होता है रेप्रोबेट. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 143. ए पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर एंड इमेनिसिपेशन ऑफ वुमेन इज फेमिनिस्ट. 1 इज द आंसर. मस्कुलिज्म मतलब बढ़ावा देना मैनहुड को. मीजोगाइनिस्ट, हेटर ऑफ वुमेन. 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 144. एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट इज ओपेक. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. 3 इज द आंसर. 145. एडुलेशन मीन्स एडमायरेशन. 4 इज द आंसर. थोड़ा गैप दे देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ही छोटे छोटे कर दिए क्वेश्चंस को. नेक्स्ट 146. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज सी आई टू आई. मतलब स्टेट एट ईच अदर. स्टेयर आना चाहिए, स्टेट लिख दिया है. एग्री या फिर डिपेंड ऑन या फिर मेक एन एफर्ट. तो ये होगा एग्री करना. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 147. गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अब्यूटिंग.
एबिटिंग का मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 148, डैश इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट टू बी इन। फैसाइल या फिर प्रोबेट या फिर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब हाँ ये होने वाला या नहीं होने वाला। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 149, which of the following means the same? A person with whom one shares a private matter, trusting them not to repeat to others. That is confidant. 2 is the answer. Next 150, choose the one which expresses the meaning of the given word prodigal. Prodigal का मतलब क्या होता है? Wasteful. 4 is the answer. Next question number 141, I shall go and dash down. English. लाई डाउन देखिए शेल है और गो है तो क्या आना चाहिए इसमें? थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, लाई आएगा, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 142, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कोर्डियल। कोर्डियल क्या होता है? बड़ा ही हार्ट वार्मिंग, फ्रेंडली। तो फास्ट, हार्ट फेल्ट, फ्रेंडली की सिनोनिम्स हो गए कोर्डियल के, है ना। बोलते हैं ना फास्ट फ्रेंड मतलब कोर्डियल रिलेशन है, तो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? हॉस्टाइल। 3 is the answer. Next 143, microscopes make small things appear larger than they really are, या फिर are really, या फिर are they really, they really are, then they really are. 4 is the answer. Next 144, find the correct spelt word. assassination होता है ना, assassination, 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 तो डबल एस आता है उसके बाद, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 145, fill in the blanks with correct preposition. I have no sympathy dash this man. Sympathy to होता है for या from with. It is for this man. 2 is the answer. Next 146, word dash expresses the opposite meaning of susceptible. Susceptible का मीनिंग क्या होता है? जो कि आसानी से प्रभावित हो जाए, इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज अफेक्टेड, है ना। तो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या होता है? इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इम्यून, इम्यून मतलब जो कि डैमेज ना हो सके, अफेक्ट ना हो सके, बिल्कुल ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया ससेप्टिबल का। 2 इसका आंसर हो गया। प्रिडिक्टेबल, जिसको आप पहले से ही जान सकते हो, प्रिडिक्टेबल, और अनप्रिडिक्टेबल ये इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट 147, अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हस्बैंड ऑन सेपरेशन, क्या बोलते हैं उसको? एलिमनी। अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा है उसमें हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है, वहाँ पर दिया हुआ एलिमनी का सेक्शन। 4 इसका आंसर रहेगा। 148, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम फॉर वर्ड। देखिए वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। अभी एविडेंस भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आता है ना, टू चेक दी वेरासिटी, मतलब कि कितना ट्रूथफुल है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्सहुड। तो 1 इसका आंसर रहेगा। हीनियस नहीं, रून नहीं, कंपोज नहीं। नेक्स्ट 149, डैश इन द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रेप्ट ओवर, या फिर अंडर दी कवर ऑफ डार्कनेस। अंडर होता है ना, जैसे मान लो ये कवर है, आप इसके नीचे हो तो आप इसके अंडर हो। द एनिमी क्रेप्ट अप, वो उजागर हो गए, है ना। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ऐसी 150, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द एज द वर्ड फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है? मना करना। तो फॉरगिव तो हो गया क्षमा करना, अलाउ ये इसका अपोजिट हो गया फॉरबिड का। रिफ्यूज, ये फॉरबिड का सिनोनिम है, डिप्राइव भी। तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, क्या होता है? वो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्राबैंड। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 142, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑडिटर। ऑडिटर होता है ना जो चेकिंग करता है। 3 इज द आंसर। 143, टू होल्ड अ हैवी हार्ट मीन्स अबाउट टू डाई, हार्ट अटैक आने वाला मतलब नहीं। टू बी वेड डाउन विद सोरो, यस। हेल्पिंग अ सैड पर्सन आउट, नो। टू बी फेड अप विद लाइफ, नो। दिस इज
टू फेड अप विद लाइफ इट इज कॉल्ड एज डिप्रेस्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टू, मतलब दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं। नेक्स्ट 144, बेस्ट डैश बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ एंड ऑन, मतलब बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। इट इज नॉट रिपीटेडली, ठीक है, इट इज ओकेजनली। 3 is the answer. Next 145, dash best expresses the meaning of the phrase ins and outs. Entrance and exits, no. Details and complexity, no. Pathways, no. Rules and regulations, details and complexities. The correct type, passage, pathways, rules and regulations, no. 2 is the answer. Next 146, dash best expresses the meaning of the idiom take to one's heels. इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेजर अप टू वन स्टैंडर्ड, या फिर टू शेक वन शू, नो, टू रन अवे। तो 3 इसका आंसर रहेगा कि वो भाग गया। ऐसे 147, एंटोनिम ऑफ वर्ड फेक इज जेन्युइन, फॉल्स, आर्टिफिशियल, डिसीटफुल, तो सिनोनिम हो गए, तो 1 इसका आंसर रहेगा। फिर 148, वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द नेबुलस, नेबुलस मतलब बहुत बड़ा, वेग, ये वेग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1 इज द आंसर। टाइनी नहीं, इनसिग्निफिकेंट, इनएडुकेट, नो, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। नेक्स्ट 149, आई थिंक आई हैव गॉट कोल्ड, आई कांट स्टॉप, स्नीज आएगा या फिर स्नीजिंग आएगा? टू स्नीज, स्नीजिंग, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 150, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एज थीसिस्ट या एथिस्ट? एथिस्ट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 141, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? रैंडम, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 142, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब जो बहुत ही कमज़ोर हो, जैसे आप शीशे गिलास लेते हैं या फिर कोई ऐसा बॉक्स आता है इसमें कोई, मतलब ऐसा सामान टूट सकता है, तो क्या उस पर लिखा भी होता है कि फ्रेजाइल, मतलब टूट सकता है, इसको ध्यान से उठाएं, है ना। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही वीक, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 143, प्लीज प्लेस द बुक डैश द डेस्क, अपॉन द डेस्क, ऑन द, इन द, ओवर, ऑन द डेस्क, 2 इज द आंसर। उसके ऊपर रखेंगे ना डेस्क के। नेक्स्ट 144, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम 2018, एथीस्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 145, डैश यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, तो क्या होगा? टिल, अनटिल, अनलेस, अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं आपको पनिश करता रहूंगा, है ना। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 146, a disease which is spread by contact is called as infectious, contagious, contagious, 2 is the answer. Next 147, find the correct spelt word. abeyance होता है, अभी abeyance, abeyance, y के आगे a आता है, तो 3 इसका आंसर हो गया। b के आगे e आएगा, y के आगे a आएगा, a या abeyance, है ना। नेक्स्ट 148, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स, क्या मीनिंग होता है इसका? एक्शन फॉर डिलेइंग, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 149, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या होता है? एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई और उससे लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 150, मोडस ऑपरेंडी स्टैंड्स फॉर, क्या होता है? मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब वे ऑफ वर्किंग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 96, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड वेरासिटी। अब देखिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। अभी एविडेंस भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आता है ना, टू चेक दी वेरासिटी, मतलब कि कितना ट्रूथफुल है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली फॉल्सहुड, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 97, डैश कवर्स द डार्कनेस एंड एनिमी क्रेप्ट। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ये मेरे को लग रहा है रिपीट हो चुके हैं। अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस एंड enemy crept up, 3 is the answer. Next is 98,
वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ नेबुलस, अगेन रिपीट क्वेश्चन। नेबुलस क्या होता है? वेग, वन इज द आंसर। ऐसे 99, व्हाट डज फ्रेज इन वंस ट्रू कलर मीन्स, मतलब इन पॉइंट ऑफ इन वंस फेवर नो, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट वन प्रिटेंड्स टू बी, मतलब उसने अपनी सच्चाई दिखा दी, असली रंग दिखा दिया, मतलब वो अपने असली रंग में आ गया। 3 इसका आंसर है। इसी 100, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। एक्विजिशन होता है ना, ए सी आएगा, क्वी एन जेड की जगह एस आएगा, तो 3 इसका आंसर रहेगा। इसी 96, मैन हु कमिटेड such and dash crime must get the most severe punishment, unworthy, injurious, uncharitable, abominable, मतलब heinous crime। abominable क्या होता है? अक्षम्य है। 4 is the answer, जिसको क्षमा ना कर सके। नेक्स्ट इज 97, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड डिफियंस। डिफियंस क्या होता है? इंसल्ट, डिनायल, डिग्रेडेशन, रेजिस्टेंस, अपने आप को रोक रहा है, रोकने की क्षमता है ना, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 98, सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एज द वर्ड फॉरबिड। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। फॉरबिड मतलब रिफ्यूज कर देना, मना करना, मना करना उसको अलाउ कर दे, क्या है उसका? वो ऑपोजिट है, तो 2 ही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 99, आई डिडंट डैश टीवी लास्ट नाइट, नॉट वॉच्ड या फिर वॉच, वॉचिंग, वॉच्ड। अब देखिए डिड आया हुआ है, मतलब यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच आएगा, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 100, आई थिंक आई हैव गॉट कोल्ड, आई कॉन्ट स्टॉप, स्नीज, द स्नीज, टू स्नीज, स्नीजिंग, स्नीजिंग, 4 इज द आंसर। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। क्वेश्चन नंबर 96, विच वर्ड इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो कि रिजर्व हो, मतलब कि प्राइवेट हो, है ना, तो 4 इसका आंसर रहेगा। इसी 97, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एज, क्या होता है? एथिस्ट। 2 इज द आंसर, ही इज एन एथिस्ट, ऐसे बोलते हैं ना। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया है यही सेम। नेक्स्ट 98, इफ यू स्मगल गुड्स इनटू कंट्री दोज मे बी punished, fined, possessed, no, confiscated, confiscate कर लेंगे by the custom authorities। 4 is the answer। This is 99, he preferred cricket against two over than, over any other sport आएगा, two आएगा to any other sport, 2 is the answer। This is question number 100, for the given capitalized word pick the option that is closest in meaning। coerce का मतलब क्या होता है? कोर्शन अगर आपने सुना हो क्या होता है? मतलब फोर्स करना, कंपेल करना, 2 इज द आंसर। दिस इज 96, एंटोनिम फॉर मार्वलस इज, मार्वलस मतलब बहुत ही अच्छा, उसका एंटोनिम क्या होगा? बहुत ही बुरा, तो ऑफुल, 1 इज द आंसर। ऐसे 97, सिनोनिम फॉर ब्लैमिश, ब्लैमिश मतलब धब्बा लग जाना, क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉट, 3 इज द आंसर। ऐसे 98, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वेरासिटी। रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं? ऐसे एविडेंस में होता है ना, टू चेक दी वेरासिटी, मतलब ट्रूथफुलनेस चेक करनी है, तो ट्रूथ इसका नियरेस्ट बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग हो गया, 1 इज द आंसर। दिस इज 99, मंकी आर एबल टू मूव क्विकली, दे आर वेरी डैश, विच इज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस? हेस्टी, एजाइल, प्रॉम्प्ट, रैपिड। तेज है या फिर हेस्टी है, क्या है? एजाइल, एजाइल एज मंकी, 2 इज द आंसर। इसी 100, select the appropriate word to complete the sentence, dash most important event in India's history was revolution of 1857। the most important आएगा यहाँ पर, है ना, 1 is the answer। next 96, what is the antonym of the word optimist। optimist मतलब क्या होता है? जो कि आशावादी हो, उसको ऑपोजिट क्या होगा? निराशावादी हो, क्या बोलते हैं उसको? pessimist, 2 is the answer। next 97, make the correct answer choice for the blank in the following sentence। the cat has dash the bird, baited, ate, eaten। देखिए इसमें यहाँ पर हैज़ है तो मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, ईट, एट, ईटन, तो सी इज द आंसर।
Next is 98. Give the meaning of the word ecstatic. Ecstatic का मतलब क्या होता है? Very happy. 3 is the answer. Next is 99. A phrase generally used for the word to care for somebody or oneself is look at, look for, a good, या फिर look after. Look after बोलते हैं ना कि look after yourself, अपना ध्यान रखना. Next is 100. Pragmatic meaning क्या मतलब होता है? Practical. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. चूज द सिनोनिम ऑफ अलर्ट. तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट, ऑब्जर्वेंट, एनर्जेटिक, क्लेवर, वॉचफुल. क्या आंसर रहेगा इसका? वॉचफुल. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 42. द मीनिंग ऑफ लोकस टेंडाई. लोकस टेंडाई क्या होता है? बोलते हैं ना व्हाट इज योर लोकस, व्हाट इज योर राइट. राइट टू बी हर्ड. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 43. द फ्रेज टू कॉल इन क्वेश्चन मीन्स. कॉल इन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? डाउट करना. तो इनवाइट अ प्रॉब्लम, आस्क अ क्वेश्चन, एक्सप्रेस डाउट्स. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 44. कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है? डोसाइल, इनएक्टिव, रूथलेस. रूथलेस, हीनियस. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 45. द प्रपोजल ऑफ मोहन was accepted by him with open dash, mind, open arms, open door, open hands. Open arms. B is the answer. Next question number 41. Choose the correct word to fill the blank. Cotton is softest, softer, soft, more soft. Is softer than wood. B is the answer. Next is 42. Adjudicate means allot, decide, arbitrate, settle. क्या होता है? डिसाइड करना. B is the answer. Next is 43. A synonym of neat is, ये तो कोई बता देगा, बोलते हैं ना neat and clean. Clean. A is the answer. Next is 44. The antonym of word derogatory is क्या है? Derogatory मतलब क्या था? Derogatory mark मतलब आलोचनात्मक शब्द बोल दिए हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब प्रेज कर दी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 45. मोडस ऑपरेंडी. अगेन रिपीट क्वेश्चन. क्या होता है ये? द मोड ऑफ वर्किंग या फिर मैनर ऑफ वर्किंग. इसको बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब द मैनर ऑफ वर्किंग. सी इज द आंसर. So friends, here we have discussed all the questions of English which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2011 to 2022. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.